Independence. And yesterday I told you that we will divide War of American Independence into two parts. The first one will be based on American Revolution, that what were the factors that pushed America to go for revolution. And the second one is a War of American Independence, in which we will be talking about different phases of war, that how it actually initiated, what were the who were the participants, and what was the overall scenario and procedure that was going on at the moment. So we will divide War of American Independence basically into two parts. Okay, Ji. So the very first point is American Revolution. If you people uh, I think I have shared slides with you. You just open those slides so that I may start the lecture. Slides please open कर लीजिएगा. अच्छा जी. सेकंड स्लाइड काइंडली ओपन कीजिएगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन. अच्छा. बेसिकली है क्या कि अमेरिकन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो अमेरिकन रेवोल्यूशन को मोस्टली क्या होता है कि जो हिस्ट्री की बुक्स आपके साथ भी शेयर की गई हैं उनमें अमेरिकन रेवोल्यूशन को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है. टोटल अमेरिकन ये जो वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस है इसको दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला जो फेज है वो स्टार्ट होता है 1607 से 1775 तक. मैंने आपको जो लेक्चर डिलीवर करना है वो भी कुछ इसी तरह से करना है. 1607 से 1775 तक एक टाइम पीरियड चलता है. उसके बाद मैंने नीचे लिखा है द एक्चुअल वार फ्रॉम 1775 टू 1783. जो असल जंग शुरू होती है between the Britishers and Americans, it was from 1775 till 1783. अब 1783 आप लोग सोच रहे होंगे कि जी अमेरिका तो 1776 में जाकर आजाद हो जाता है. सो व्हाट इज द प्रोसीजर कि ये 1783 तक चलता है. 1783 तक इसलिए चलता है that still there were multiple tussles that were going on in between Europeans and Americans on the basis of economy, on the basis of social issues, on the basis of economic issues. You can say so many are there जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड वन ऑफ यू क्वेश्चन अबाउट इट कि हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स या ऑन अमेरिकन जो पढ़ेंगे वो क्या है, तो वो हम लोग इसी वाला जो हमारा ये टॉपिक है इसी के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे. लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, पिछली स्लाइड पर आएंगे दोबारा एक दफा. 1607 is the process when colonization actually started. If you people remember the yesterday's lecture in which I actually told you कि जो है अमेरिकन कॉलोनाइजेशन वाज एक्चुअली द परफेक्ट अटेम्प्ट की जब हमने बात की थी. एक्चुअली वी टॉक्ड अबाउट वो जो रिनोकी आइलैंड्स की कॉलोनाइजेशन थी, दैट वाज a failed attempt to colonization towards colonization. However, we talk about the successful attempt towards colonization that it actually started in 1607, right? So 1607 से वो attempt जो है वो start हो जाती है. और वर्जीनिया आपको मैंने बताया था was the very first state to be colonized. ठीक है. और उसके बाद वो 1775 तक चलता है, जिस टाइम पर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनती है. अभी ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी ये किस तरह से जो है वो जंग का सारा समा बनता है. अच्छा जी, उसके बाद लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड. अच्छा, Americans stood against discriminated laws due to enlightenment. अब आज we are supposed to talk about enlightenment. आपको मैंने लास्ट टाइम भी कल भी हम लोगों ने इसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कस किया था कि 15th century में or towards the start of 16th century there was a kind of enlightenment era that was going on in the United States of, not just in the United States of America but in Europe. It actually spread like a wildfire. So इसका इतना impact आया, इसका इतना ज्यादा लोगों ने असर दिया that people started thinking with logic. Initially they had no logic to think about.
So after enlightenment, people started finding out the logic behind the things, and there were so many philosophers who are considered to be important when we talk about era of enlightenment, and one of them is जॉन लॉक. जॉन लॉक की जब आप बात करते हैं तो जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक ने कहा रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट. एक सेकेंड जी, मैं इसको ठीक कर लूं. रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट शुड बी देयर. दिस इज समथिंग. एक सेकेंड जी, होल्ड कीजिएगा प्लीज. रिजवाना, आई एम टॉकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट. मैं आपको बता रही हूँ अभी डिटेल इसकी. काइंडली इस पॉइंट को कंफर्म करें. एज ऑफ एनलाइटनमेंट 30 इयर्स ऑफ वार से स्टार्ट हुई थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था, कोई बता सकता है? हम्म. जी. और 30 इयर्स ऑफ वार कब हुई थी? जी. तो अब आपको 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी कहाँ पर फील हो रही है? हम्म. आपके ही क्वेश्चन में आपके आपके पास सारे आंसर्स हैं, इनको थोड़ा फ्रेम करें. जी, 1789 में हुई थी ना? हम्म. एक्चुअली ये एक पूरा प्रोसेस है जो कनेक्टेड है एक दूसरे से. फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में आता है, उससे पहले 30 इयर्स ऑफ वार हो चुका था. 30 इयर्स ऑफ वार से भी पहले एनलाइटनमेंट का टाइम स्टार्ट होता है, जिसको आप 15th सेंचुरी बोलते हैं. ठीक है. अब एनलाइटनमेंट की अगर हम बात करें तो एनलाइटनमेंट क्या है? देखें, रिजवाना आस्क्ड दिस क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं. देखें, असल में होता क्या था कि लोगों के पास लॉजिक नहीं होता था. लोगों को किंग और क्लर्जी जो बात कहते थे, लोग उस बात को मान लेते थे. लोगों को ये बताया गया था कि अल्लाह ताला ने या गॉड ने किंग को भेजा है एज अ सुपीरियर क्रिएचर टू रूल ओवर पीपल. ठीक है. और ये किंग के पास डिवाइन इख्तियारात हैं, अल्लाह ताला की तरफ से या गॉड की तरफ से दिए हुए इख्तियारात हैं कि वो आप लोगों के ऊपर रूल करेगा, ये बताया गया था. ठीक है. और क्लर्जी जो थी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्लर्जी किसे कहते हैं? जिसमें आपके ये सारे आ जाते हैं, जो है जो प्रीस्ट्स होते हैं ये आ जाते हैं, आपके मॉन्क्स आ जाते हैं. ठीक है. नन्स, each and every person that is associated with the department of church is actually part of clergy. So the point is कि जब वो लोग और किंग आपस में मिले हुए थे तो दे डिसाइडेड कि हम लोग टैक्स इम्पोज करेंगे आम आवाम के ऊपर, और आम आवाम जो है वो टैक्सेस पे करेगी और हम लोग उससे ऐश की जिंदगी गुजारेंगे. अब लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों के पास किसी किस्म के जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कोई भी इकोनॉमी फ्लरिश नहीं करती थी, बट दे स्टिल हैड टू पे द टैक्सेस. क्यों? अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ डिविनिटी. एक डॉक्ट्राइन दिया गया था डिविनिटी का कि किंग के पास डिवाइन इख्तियारात हैं कि वो आप लोगों को रूल करेगा और वो जो कहेगा आपको वो बात माननी पड़ेगी. और लोग डर के मारे किंग के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते थे. वो इसलिए नहीं उठाते थे क्योंकि उन्हें ये डर लगता था कि कहीं हम लोग रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कोई ज्यादती या कोई गुस्ताखी तो नहीं कर रहे. सो उसके बाद हुआ क्या कि कुछ लोग ऐसे आए जिनमें सबसे पहला नाम जिसको इसका आप कह सकते हो ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है, वो है मार्टिन लूथर किंग. मार्टिन लूथर किंग ने एक पर्सपेक्टिव दिया और उसने ये कहा कि आप ये चीज देखें कि क्या आपको कहीं से ये चीज साबित हुई है कि किंग को डिवाइन इख्तियारात दिए गए हैं और किंग जो है वो रूल करेगा सबके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है.
उसने एक नया पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया कि आप लॉजिक के साथ बात करें। क्लर्जी का क्या काम है कि वो टैक्सेस कलेक्ट करें, ठीक है। सो इस तरह के लॉजिक देने के बाद एक नया स्कूल ऑफ थॉट सामने आया जिसको कहा जाता है प्रोटेस्टेंट्स। अब प्रोटेस्टेंट से पहले जो एग्जिस्ट करते थे उनको कहा जाता है कैथलिक्स। कैथलिक्स को आप लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी कहते हैं। सो देयर वर एक्चुअली टू स्कूल्स ऑफ थॉट। द फर्स्ट वन was of Catholics, who are also known as Orthodox Christians, and then comes Protestants, ठीक है। सो ये दो स्कूल ऑफ थॉट आपके सामने आ जाते हैं। अब हम लोग जिन फिलोसफर्स की बात करें, अच्छा अब ये जो इरा ऑफ एनलाइटनमेंट है ये क्या है, इसके अंदर एक और चीज आपने याद रखनी है, वो ये है कि उस टाइम पर, जिस टाइम की ये हम बात कर रहे हैं कि दो स्कूल्स ऑफ थॉट आ गए थे, उस टाइम पर जो बाइबल थी उसको खुद ब खुद ट्रांसलेट करके उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हुए थे। जो कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट है उनकी साइड से चेंजेस किए गए थे। और वो चेंजेस क्या थे कि जो किंग है वो डिवाइन राइट्स रखता है, बाइबल के अंदर लिख दिया हुआ था खुद से, एंड पीपल यूज टू बिलीव इट। बट मार्टिन लूथर किंग हाईलाइटेड दिस पॉइंट। हाउ? बिकॉज एट दैट टाइम प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। सो जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ और रियल बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट करके उसकी कॉपीज निकाली गई, तो ये बात सामने आई कि जी किंग झूठा है, उसने जो बातें की हैं वो गलत की हैं। ये मैंने आपको बस स्टोरी की तरह समझा रही हूँ ताकि आपको पता चले एनलाइटनमेंट किसे कहते हैं। तो लोगों का एक रुझान प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ चला गया। अब हुआ क्या कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स आपस में लड़ते थे। सिमिलर इज द केस इन आवर कंट्री, ऑल्दो इट इज नॉट एज सच ऑन हाइप, बट स्टिल देयर आर एथनिक क्राइसिस। तो शिया और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट की बड़ी लड़ाई होती है, मुख्तलिफ जगहों पे आप लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। सिमिलर वॉज द केस इन यूरोप। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो थे ये बहुत ज्यादा आपस में लड़ते थे, और फिर एक इनकी बड़ी जंग होती है जिसको हम बोलते हैं 30 years ऑफ वार। अब वापस जब हम अपने एनलाइटनमेंट के टाइम पर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, एनलाइटनमेंट के टाइम पर जब हम आते हैं तो देयर वर मल्टीपल फिलोसफर्स हु वर एक्चुअली सपोर्टिंग the Protestant school of thought, who were actually the part of enlightenment, you can say campaign। and अब हम उन फिलोसफर्स का जिक्र करने लगे हैं जो इसको सपोर्ट करते थे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है रिजवाना, स्पेशली यू, बिकॉज यू आस्क्ड मी कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट, तो मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है। अभी यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले ताकि मैं उसके बाद इसको प्रोसीड करूँ। क्लियर हो गया? चलो गुड है। अच्छा जी, उसके बाद अब होता क्या है कि फिलोसफर्स में सबसे पहला नाम जो हमारे पास आता है दैट इज ऑफ जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस रखते हो तो यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट जॉन लॉक, बिकॉज इसकी आई थिंक आप लोग कोई हॉब्स की भी और ये थेरीज भी उसमें पढ़ते हो। तो आईआर वाले तो बस यहीं तक ही इनको पढ़ते हैं। अच्छा, जॉन लॉक पर आते हैं। देखो जॉन लॉक ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया था जिसको इसने कहा था रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट। John Locke was of the view that there should be a responsible and accountable government। ये फिलोसफर्स जो बातें करेंगे वही बातें आगे जाकर अमेरिका ने अपने गवर्नमेंटल सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट की। और आज भी अमेरिका के अंदर जो गवर्नमेंटल सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो इन्हीं फिलोसफर्स की बेस पर करता है, जो एनलाइटनमेंट के टाइम पर कुछ पॉइंट्स देकर गए थे। इसमें पहला पॉइंट जॉन लॉक का था जिसने एक बात कही थी, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। So this thing was actually considered to be an important perspective by the Americans। We are talking about American War of Independence, and in American War of Independence, we are discussing American Revolution. So we are discussing the points that caused American Revolution. In that particular perspective, our first point was era of enlightenment. Era of enlightenment inculcated a sense of, you can say, a nationhood among the Americans, and they thought it prudent to have a separate country in the form of the United States of America that will be free from British colonialism. Got it? And then the second point that is considered to be a part of American Revolution, that is the sayings or the debates by different philosophers who came up with different ideas, and those ideas later on incorporated into the governmental structure of the country। ये country यहाँ पर कौन है? अमेरिका।
जॉन लॉक ने क्या पॉइंट दिया है? रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जॉन लॉक कहता है रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ थॉमस हॉब्स। ठीक है, हॉब्स का क्या कॉन्सेप्ट है? हॉब्स की एक थ्योरी बहुत फेमस है जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय थॉमस हॉब्स, इसके अंदर क्या बात बेसिकली की गई है? इसमें वो ये बात करता है, वो ये कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इन सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। बेसिकली बात इसके अंदर क्या होती है, वो ये कहते हैं कि जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर बेसिकली हॉस्टाइल इन नेचर, दे आर बेसिकली हॉस्टाइल, एंड they are not directly, if they are not directly confronting each other, then there must be a secret contract between them। ठीक है, वो कहता है थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, आपको नाम से अंदाजा हो रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। Human beings are part of society, so this society is in contract. Human beings are in contract with each other. They have to avoid any kind of conflict. So in order to avoid any kind of conflict, all what they do is a kind of contract that they will be living peacefully. There will be no war or there will be no anarchy all around. Got it? So नेक्स्ट स्लाइड में वो ये कहते हैं कि जॉन लॉक रिजेक्टेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब थॉमस हॉब्स की जो थ्योरी है, जॉन लॉक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। व्हाई? बिकॉज थॉमस हॉब्स की ये जो थ्योरी है ये आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है, जबकि जॉन लॉक की जो थ्योरी है ऑल्दो इट इज आल्सो बेस्ड ऑन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, बट इसके अंदर रियलिस्ट एलिमेंट आपको नजर आएगा। ठीक है, एक ऑथेंटिसिटी आपको नजर आएगी जो जॉन लॉक बातें कर रहा है। जॉन लॉक ने पहले क्या कहा? रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट शुड बी देयर। सो दिस इज समथिंग दैट अमेरिकन्स वुड परस्यू, और दिस इज समथिंग दैट अमेरिकन्स वुड वर्क ऑन। However, if we talk about social contract theory, then this is just a theory that human beings are in social contract with each other. In order to avoid any kind of conflict, they have to live together, they have to live peacefully, that's all. However, John Locke rejected the idea of social contract and he came up with the concept of life, liberty and property. आपने अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए फाइट नहीं करेंगे। आपके घर में अगर चोर डाकू आ रहे हैं तो आपने लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, तीनों चीजों को बचाना है, कि आप रिटेलिएट नहीं करेंगे? या आप ये कह देंगे कि मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ इस टाइम पर? प्लीज आंसर कीजिएगा। आई जस्ट वांट टू वेक यू पीपल अप, कि आप लोग जरा पार्टिसिपेट करें और देखें कि सिचुएशन किस तरफ को जा रही। बताएं मुझे, आप लोग क्या करेंगे अगर आपके घर में चोर आ जाते हैं बिल पर? तो आप लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को सिक्योर करेंगे, या फिर ये आइडिया लेकर मोहल्लेदारों के सामने, घर वालों के सामने आएंगे कि आई वाज जस्ट फॉलोइंग थॉमस हॉब्स पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? एग्जैक्टली। सो रिटेलिएशन से अब हम एक और पॉइंट निकालते हैं। ये बेसिकली जॉन लॉक इस चीज पर पुश कर रहा है अमेरिकन को, टू रिटेलिएट। फॉर व्हाट? फॉर लाइफ। For what? For liberty. For what? For property. Because all the three things were exploited at the hands of Britishers. Have you noticed it? लाइफ कैसे एक्सप्लॉइट हो रही है? लोगों की जिंदगी की कोई जमानत नहीं है, स्लेव्स बनकर आ रहे हैं, काम कर करके मर जाए, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। लिबर्टी कैसे हो रही है? कॉलोनियलिज्म चल रहा है, उनके लैंड्स, उनका सब कुछ उन्हीं के ऊपर ही जो है वो हावी हुआ हुआ है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगेन एग्रीकल्चर आ गया आपका, गॉड गोल्ड ग्लोरी पढ़ाया आपको सारा। And then John Locke gave the concept of a welfare state. Welfare state कौन सी state होती है? Where human rights are ensured. So all the things, all the points that were given by John Locke, you can find all the points in American Constitution. And when we will be talking about American Constitution, it is a separate topic. And when I will be teaching you that, I will quote all these points of John Locke over there. And you will see that overall structure of the United States of America is based on the perspective of John Locke. Not just John Locke, there are others as well, जिसमें Benjamin Franklin का नाम बहुत important है. Move to the next slide. I think next one is of Benjamin Franklin. Exactly. Benjamin Franklin is another philosopher who plays an important role when it comes to American Revolution. Listen, we are not talking about War of American Independence. Today we are just talking about American Revolution. इनकलाब की सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है?
बेंजामिन फ्रैंकलिन इज अनदर फिलोसोफर, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। व्हाई? बिकॉज ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डीइज्म। किसी को पता है डीइज्म क्या होता है? बताइए प्लीज। डीइज्म, DEISM, डीइज्म। जैसे सोशलिज्म होता है, मार्क्सिज्म होता है, ऐसे डीइज्म का एक कॉन्सेप्ट है। नहीं पता? चलें, लेट मी टेल यू। देखें, नहीं सुना मैंने तो। डीइज्म, डीइज्म। ठहरे, लेट मी राइट इट फॉर यू हियर। वैसे तो आप लोगों के सामने स्लाइड्स भी खुली हुई हैं। डीइज्म। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखें, स्लाइड्स बैकग्राउंड की वजह से विजिबल नहीं है। वाई? यहाँ पर मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर है। किसी को प्रॉब्लम हो रही है स्लाइड्स में? काइंडली बताइएगा मुझे। आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल नहीं होती हैं? नहीं, नो मैम का क्या मतलब? नहीं होती? क्लियर है? मैं तो स्पेशली एनिमेशन डिजाइन वो वाले लेती हूँ जो बड़े लाइट होते हैं। आई डोंट नो आप लोग कहाँ पर खोलते हो। मरियम और रिजवाना को प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज तो सारी क्लास कह रही है सही है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट डीइज्म। देखो, डीइज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? गौर से सुनना, दिस विल हेल्प यू इन योर एसे एज वेल। वो कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। डीइज्म को मानने वाले क्या कहते हैं, सुने। गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। अच्छा, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली चेंज है। डीइज्म का कॉन्सेप्ट इस्लाम से टोटली चेंज है। कैसे? आई विल टेल यू। वो कहते हैं, डीइज्म के मानने वाले वो कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई, एंड लेफ्ट ऑन द पीपल टू स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट एंड ट्रू मीनिंग्स टू लिव। इसको मानने वाले ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई है और फिर उस यूनिवर्स को इंसान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन काइंड टू स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट एंड टू फाइंड द ट्रू मीनिंग्स टू लिव। God has no responsibility. God has no contribution in society. God has no contribution in this universe. These are the human beings who are actually running all the things, because God has inflicted this responsibility or put this responsibility on the shoulders of human beings. However, what Islam says कि आप मेहनत करो और अल्लाह ताला से मांगो। और इस कायनात का पूरा निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह ताला की जात चला रही है। दिन रात, सूरज चांद सितारे, पानी, हवा, फूल दरख्त, खुराक, अनाज, क्या कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहे हैं। दिस इज अवर कॉन्सेप्ट। बट डीइज्म के मानने वाले कहते हैं कि हम मानते हैं अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई है, बट उनका कंट्रीब्यूशन इतना ही था। उन्होंने ह्यूमन बींग्स के ऊपर छोड़ दिया कि अब वो मेहनत करें इसके ऊपर। सो द थिंग इज कि ये जो मैंने आपको डीइज्म का कॉन्सेप्ट बताया है, अमेरिकन फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। अमेरिकन जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इसलिए वो इतनी मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बस अब गॉड ने डाल दी है। गॉड हैज नथिंग टू डू विद दिस यूनिवर्स नाउ। It is our responsibility to grow vegetables, to plant seeds, or to different different आप कह सकते हो चीज।
ठीक है। वो कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बारिश होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है सैलाब आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सब कुछ हो रहा होता है। बट द थिंग इज कि वो नेचर को, वो गॉड को बिल्कुल माइनस कर देते हैं नेचर में से। however being Muslims, we know that all the earthquakes, all the floods, each and every kind of natural disaster or any kind of disaster is because of the instructions that God give to the angels to do that. Okay, what makes sense? Imtiaz, do you think deism is making sense? Don't confuse your religious point of view just by reading a kind of concept. Hmm? How can you justify this point? Hmm? चांद आप निकालते हैं रोज रात को, सूरज आप निकालते हैं रोज रात को। यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। बताइए मुझे कैसे कॉन्सेप्ट आप कैसे कह सकते हैं इट इज मेकिंग सेंस? Benjamin Franklin also talked about confederation. Now you need to know about the difference between federation, confederation and state. या यूं आप कह सकते हो that you need to learn the difference between federation and confederation. Can anyone tell me what is the difference between federation and confederation? First I will teach you that और फिर हम अमेरिका के ऊपर अप्लाई करेंगे उसको। हाँ जी, फेडरेशन क्या होती है? इन फेडरेशन द पावर इज होल्ड बाय द सेंटर। अच्छा ठीक है अनस, तो फिर कॉन्फेडरेशन क्या होती है? ये सीएसएस पैनल का जब आप इंशाल्लाह रिटर्न क्वालिफाई करेंगे तो ये पैनल का फेवरेट क्वेश्चन है जो आपसे पूछते हैं, इफ यू हैव ऑप्टेड यूएसएसपी। बताइए कॉन्फेडरेशन क्या है? While confederation, some of the powers are given to the states as well, like US. अच्छा, कॉन्फेडरेशन जिसमें स्टेट सॉवरन होती हैं। पाकिस्तान इज अ फेडरेशन while यूएस इज अ कॉन्फेडरेशन। ठीक है। रशिया क्या है ये बताओ फिर? रशिया क्या है? यूएस तो फेडरेशन में आता है। हम्म। आप लोग अपने आइडियाज दें। रशिया इज अ फेडरेशन। रशिया कॉन्फेडरेशन नहीं है। वाई रशिया इज नॉट कॉन्फेडरेशन? आयशा, रशिया इज समथिंग एल्स। क्या है फिर? जो अर्ली टाइम्स थे उसमें यूएस कॉन्फेडरेशन में था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? देखें, जो कॉन्फेडरेशन होती है ना,
एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जो कॉन्फेडरेशन होता है ना, उसकी मिसाल कैसे है? उसकी मिसाल ये है कि एक फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में कोई खास फर्क, एक फर्क है बस, ठीक है। आप यूं से कह सकते हो कि फेडरेशन छोटे लेवल पर होती है और कॉन्फेडरेशन बड़े लेवल पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूं तो पाकिस्तान इज अ फेडरेशन। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सेंटर and the main power is actually in the hands of center, and then there are four provinces, and after 2010, like after 18th amendment in the constitution of Pakistan, provincial autonomy was granted to the provinces. So now provinces have also some sort of powers जिनको आप लोग जो है प्रोविंशियल लिस्ट में काउंट करते हैं, एंड देन देयर इज अ फेडरल लिस्ट, एंड देन देयर इज अ थर्ड लिस्ट एज वेल विच इज कंकरेंट लिस्ट। एंड वो कंकरेंट लिस्ट जो है उसके अंदर सारे वो वाले मामला तय होते हैं जो फेडरल और प्रोविंस के मुश्तरका मामला होते हैं। द थिंग इज कि फेडरेशन जो है उसके अंदर यूं होता है कि एक सेंटर है और साथ में प्रोविंसेस हैं,